I welcome all my lovely students and my dear friends. Let's start our today's English class. Today we will do chapter 5 of English Literature of DAV class 7th. Students, it's a poem I Dream a World by Langston Hughes. Langston Hughes was an American poet and a social activist. If you look into his past history or his life history, you will come to know that his mother was an African lady and his father was American. So he was an African American person, or the poet you can say. If you hear the news students, तो आज भी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि people are raising their voice against the racial discrimination in America. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव नस्ल के आधार पर, नस्ल रंग के आधार पर हम कह सकते हैं। तो अगर आज भी अमेरिका में ये सिचुएशन है तो सोचो उस समय कितनी रही होगी। अगर आज के टाइम में भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उस समय कितना हुआ होगा। तो लैंगस्टन ह्यूज फेस्ड ऑल दीज मिजरेबल सिचुएशंस इन हिज लाइफ ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, and that is why most of his writing includes such social issues. Let's see what kind of world is dreamt by Langston Hughes. Let's start our poem I Dream a World by Langston Hughes. The poem is beginning with the phrase I dream a world. It means that here the poet is expecting for a better world where there should be equality and respect for all. There should be no discrimination. Here you can see this picture. One man is white and another is black, and both has something written in their hands, and both are saying, "Is his life worth more than mine?" And the white person is saying, "Is his life worth less than mine?" वर्थ कीमत किसी चीज़ की। तो दोनों ही कह रहे हैं, वाइट पर्सन इज सेइंग कि क्या इसकी जो लाइफ है वो मेरी लाइफ से कम कीमती है, एंड द ब्लैक मैन इज सेइंग कि क्या इसका जो जीवन है, इसकी जो लाइफ है वो मेरी लाइफ से ज़्यादा कीमती है। वाई? दोनों में डिफरेंस क्या है? ही इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बींग एंड आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, सो वाई वी आर ट्रीटेड in a different ways? Similar thing is depicted in this poem. So let's start our poem. I dream a world where man no other man will scorn, where love will bless the earth and peace its path adorn. Students, here it is written, man no other man will scorn. Scorn होता है feeling of disrespect. रिस्पेक्ट किसी का सम्मान करना, किसी को इज्जत देना, और डिसरिस्पेक्ट किसी की इंसल्ट करना हम कह सकते हैं, किसी को अपने से छोटा समझना. सो हेयर द पोएट इज ड्रीमिंग ऑफ अ वर्ल्ड वेयर no man will scorn other, means no person should disrespect the feeling of others. He is hoping for the world where everyone should respect each other, where love will bless the earth and peace its path adorn. Love will bless the earth. इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर मीन्स यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच क्या होना चाहिए? Each and every person should be blessed with love and peace its path adorn. Path here means life. और उन सबकी लाइफ, किन की लाइफ? The people who are residing on this earth, on this planet. हम सबका जीवन कैसा होना चाहिए? Adorn means decorated. Our life should be decorated with peace and harmony. Means each and every person should live peacefully and have a blessed and respectful life. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our day. The poet is saying here that he is thinking of a world, or he wants a world where all will know sweet freedom's way. अभी हमने थोड़ी देर पहले भेदभाव की बात की थी, तो जब भी भेदभाव किया जाता है तो क्या होता है? जो
ज़्यादा पावर में होते हैं वो अपने से कमज़ोर को दबाने की कोशिश करता है, उनके साथ इक्वल बिहेव नहीं होता। सो द पोएट वांट्स कि देयर शुड बी फ्रीडम फॉर एवरीवन, एवरीवन शुड हैव द life in which they can do anything that they want. There should be no restrictions over them. There should be no discrimination with them. Where greed means lalach, no longer saps the soul. Saps होता है to destroy or to make weaker. Destroy होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, और to make weaker, weak मतलब कमज़ोर, तो या फिर किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। एवरेज अगेन मीन्स लालच, या यहाँ पर एवरेज का सेम जो मेन मतलब है दैट इज ग्रीड फॉर मनी, पैसों का, बहुत सारे पैसों का लालच। ब्लाइट्स अगेन मीन्स टू स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब भी डिस्ट्रॉय ही होता है, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर, where greed no longer saps the soil nor avarice blights our day, कि हमारा लालच, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है, चाहे वो सिर्फ पैसे के लिए है, वट एवर, हमारे ऐशो आराम के लिए, हमें ऐसा नहीं बनना कि वी आर exploiting others and destroying the life of others. We should not be that much greedy that our greediness, और जो या फिर जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हम ऐसे बन जाए कि वी डोंट इवन थिंक ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। सैप्स अब यहाँ पर आप वर्ड देखेंगे बेटा, सोल, सोल मतलब यहाँ पर सोल डिपिक्ट कर रहा है हमारी फीलिंग्स को, कि हम किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर दें कि हम उसको कुछ समझे ही ना। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें अपने लालच को पूरा करने के लिए या सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचे नहीं गिराना, दूसरों की फीलिंग को हर्ट नहीं करना। वी शुड नॉट बी दैट मच ग्रीडी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है, इसमें क्या है, ये पर्सन सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोच रहा है। इसने अपने हाथ में लोगों को आप देखेंगे यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये लोग तकलीफ़ में हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही होगी, नो, ही इज़ जस्ट सो हैप्पी दैट कि उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं। फाइन। A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. Here the poet is saying he has directly mentioned black or white. Race मैंने आपको बताया था नस्ल, ठीक है। So the poet is saying where black or white, whatever race you be, आप चाहे किसी भी नस्ल के हो, आप का जो स्किन कलर है वेदर इट्स वाइट और इट्स ब्लैक, या अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, अगर हम लोग इंडिया के सिनेरियो से देखते हैं, तो चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इट डजंट मैटर, इट शुड नॉट मैटर। द पोएट इज सेइंग इट शुड नॉट मैटर। क्या होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति धर्म नस्ल से बिलोंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, एवरीवन विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ। बाउंटीज, बाउंटीज होता है गिफ्ट्स, बाउंटीज मीन्स गिफ्ट्स। अब क्या अर्थ क्या हमारे लिए कोई गिफ्ट पैक लेकर आती है, नो। बाउंटीज ऑफ द अर्थ, गिफ्ट्स ऑफ द अर्थ मीन्स एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, नेचुरल थिंग्स एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। अब बेटा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता था, अगर ये जो है अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा फैला था, अमेरिका में था, आज भी है, आज भी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो पहले क्या था, लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता था कि देयर वर डिफरेंट प्लेसेस फॉर वाइट्स एंड नॉन वाइट्स, चाहे ड्रिंकिंग वाटर है, रहने की जगह है, काम करने की जगह है, देयर स्कूल्स, देयर वर्किंग प्लेसेस, देयर रेजिडेंशियल प्लेसेस, ईच एंड एवरीथिंग वर टोटली डिफरेंट फॉर द वाइट्स एंड नॉन वाइट्स पीपल। पब्लिक प्लेसेस भी है, पार्क भी है, कुछ भी है। तो सोचो, जो चीज़ें अगर नेचर ने बनाई है, पीने का पानी भी है, वो नेचर से हमें मिल रहा है, उसमें भी वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि नो वन शुड एंटर दिस एरिया, नो वन शुड ड्रिंक दिस वाटर। तो दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग दैट एवरीवन शुड शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ। अर्थ से हमें जो भी मिला है, अर्थ पर जो भी मिला है, यानी अर्थ पर जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर वो जगह, वो चीज़ें सब इक्वली शेयर करें, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के ऊपर कोई रुकावट ना हो, आप यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एवरी मैन इज़ फ्री,
and that's why everyone should live freely according to their own wishes. The last stanza of the poem is, where richness will hang its death and joy like a pearl attends the needs of all mankind, of such I dream my world. Here, this word means pitiable. Pity होता है बेटा दया. So pitiable, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हमें दया आए. तो ऐसा हो ही क्यों इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में कोई जिसके ऊपर हम दया दिखाएं. तो दैट्स व्हाई हियर द पोएट इज सेइंग, वेयर रिचनेस विल हैंग इट्स हेड मतलब उसको लटका देना. लटकाना जैसे होती है ना, फांसी होती है जैसे, उसमें क्या होता है, जो पर्सन लटका वो क्या, वो ख़त्म हो गया. तो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशंस को क्या करना है, हमने ख़त्म करना है. Such pitiable or the miserable situations, the bad situations from our life should end, and joy like a pearl attend the needs of all mankind. Joy means happiness. खुशियाँ, खुशियाँ क्या करे, attend means spread. Attend here means spread, फैल जाएं. कहाँ फैल जाएं? Needs of all mankind, हर एक के जीवन में. Each and every person should be happy. Their life should filled with happiness. और वो हैप्पीनेस कैसे फैल जानी चाहिए, यहाँ पर देखो लिखा है लाइक अ पर्ल. क्योंकि जो मोती होते हैं, मोती को आप अपने हाथ में से नीचे छोड़ दोगे तो वो दूर दूर तक फैल जाएंगे. तो कह रहा है ऐसी हैप्पीनेस भी जो है दूर दूर तक हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए. एंड एवरीवन शुड लिव अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ. सो द पोएट इज सेइंग एट लास्ट, ऑफ सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड. मैं एक ऐसा वर्ल्ड चाहता हूँ वेयर ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी लव्ड, शुड बी ब्लेस्ड, शुड बी रिस्पेक्टेड एंड शुड बी हैप्पी. where the person is having equal rights, where he is not facing any miserable situations, especially created by the human being. नेचर की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम मिल रही है, दैट इज़ फाइन, पर एटलीस्ट वो प्रॉब्लम तो ना हो ना जो हम इंसान ही इंसान के लिए बना रहे हैं. So the poet is dreaming of such kind of beautiful world filled with respect, love, and happiness. So what we have learned from this poem? We have learned that everyone has the right to be loved and respected. So students, respect everyone and spread the happiness. Stay blessed, keep shining and smiling. Thank you. Have a great day.